ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر عائد ٹیرف بڑھانے کا اعلان۔ کہتے ہیں بھارت روس سے تیل خرید کر بھاری منافع پر فروخت کر رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین میں جاری جنگ اور ہلاکتوں کی پرواہ نہیں۔ بھارتی مصنوعات کی امریکہ درآمد پر ڈیوٹی میں بڑا اضافہ کیا جائے گا۔ بھارت نے امریکہ سے حاصل رعایتوں کا غلط فائدہ اٹھایا۔ بھارتی منافع روسی جنگی مشین کو تقویت دے رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر عائد ٹیرف بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، بھارت روس سے تیل خرید کر بھاری منافع پر فروخت کر رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین میں جاری جنگ اور ہلاکتوں کی بھی پرواہ نہیں۔ بھارتی مصنوعات کی امریکہ درآمد پر ڈیوٹی میں بڑا اضافہ کیا جائے گا۔ بھارت نے امریکہ سے حاصل شدہ رعایتوں کا غلط فائدہ اٹھایا۔ بھارتی منافع روسی جنگی مشین کو تقویت دے رہا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے پاک امریکا دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے اسحاق ڈار کی مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا، عالمی و علاقائی صورتحال پر بھی بات کی گئی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی روابط اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان قدرتی آفات کے ریڈ زون میں ہے۔ مستقبل کی تیاری نہ کی تو جو کام کریں گے بیکار ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت میں تقریب سے خطاب، کہا گلگت میں 7 سال سے ایڈوانس وارننگ سسٹم صرف کاغذوں میں چل رہا ہے۔ اس سے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا، کاربن گیس کے اخراج میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر 10 ملکوں میں شامل ہیں۔ دنیا میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وزارت والے جائیں اور فنڈز لے کر آئیں۔ گلوبل مشن میں پاکستان کی کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے باوجود پاکستان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں اس تباہی اور نقصانات کو فیس کر رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج اور ان کی سیکرٹری اور پوری ٹیم کو ادب کے ساتھ لیکن بڑے واضح ہدایت دی میں کہ وہ مہربانی کر کے اس کے اوپر کام کریں، فنڈز لے کے آئیں، فنڈ جنریٹ کریں۔ ایڈوانس وارننگ سسٹم یہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ 7 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے کاغذوں میں۔ اختصار کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس 1.25 سال میں بھی جو کام ہونا چاہیے تھا اس سپیڈ پہ نہ ہوا۔ مہربانی کر کے اب جو ٹائم لائنز دی ہیں اس میں 1 گھنٹے کی بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ سورس کی میں نے پریزنٹیشن لے لی ہے، میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے اور اس کمیٹی میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، امیر مقام صاحب بھی ہیں، چیف منسٹر صاحب اور گورنر آپ کی بھی اس میں مشاورت لیں گے، لیکن اس مسئلے کو انصاف اور ملک کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق حل کرنا۔ چلاس میں سیلابی ریلے میں بہنے والی ٹی وی اینکر اور ان کے اہل خانہ کی تلاش روک دی گئی ہے۔ لاپتہ دوسرے 10 افراد بھی جاں بحق قرار دیے گئے۔ 14 روز سے جاری تلاش آپریشن ختم کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاپتہ ہونے والوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ نجی ٹی وی اینکر، ان کے اہل خانہ اور دیگر 10 لاپتہ افراد کی ابھی تک لاشیں بھی نہیں مل سکیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے، بات نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں تو یہ سلسلے ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا شہباز شریف کی والدہ کا جب انتقال ہوا کم ظرفی کا عالم یہ تھا کہ جج نے کہا آج ہی گواہ کو سنیں گے۔ اس وقت بھی تکلیفیں تھیں، آج بھی تکلیفیں ہیں۔ جب تک اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے اسی طرح ہوگا۔ چیزوں کو اس حد تک لے کر جائیں جہاں سے واپسی ممکن ہو۔ اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے، بات نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں، یہ سلسلے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ جب تک اپنی غلطیوں کا خود اعتراف نہیں کریں گے نہیں ہوگا اس طرح۔ نعرے لگانے سے، پیپر پھاڑنے سے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ نہیں ٹھیک ہونے دیں گے۔
शहबाज शरीफ साहब की जब वालदा का इंतकाल हुआ है, कम ज़रफ़ी का आलम ये था कि हमारा ख्याल था कि जब जाके बताएंगे, ये सामने खड़े हैं जज साहब, इनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, शाम 5 बजे जनाजा है और लोग ताज़ियत के, उन्होंने कहा नहीं, ये आज वाला गवाह करा लो। वालदा की मैयत की मौजूदगी में गवाह रिकॉर्ड किया। वो भी तकलीफें थी, ये भी तकलीफें, चीजों को उस हद तक लेके जाए जहां से वापसी मुमकिन हो। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर कहते हैं कि अरकान असम्बली को सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर जमहूरियत का कत्ल किया गया। जितने मर्जी अरकान असम्बली का सियासी कत्ल कर दें, हौसले बुलंद हैं, जुल्म के खिलाफ डटे हुए हैं। बानी के जानिसार ऐवान के अंदर और बाहर मौजूद हैं। जमहूरियत का कत्ल हुआ है, हमारे मेंबरान कौमी असम्बली को सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया है। ये उमर अयूब या जरताज गुल का कत्ल नहीं है, ये इस ऐवान के मैंडेट की तौहीन है। लेकिन आप कुछ भी कर लें, हमारे हौसले बुलंद हैं, हम डटे हुए हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। जितने मर्जी हमारे मेंबरान कौमी असम्बली का सियासी कत्ल कर दें, इमरान खान के जानिसार इस ऐवान में भी मौजूद है और ऐवान से बाहर भी मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह यौम शुहदाए पुलिस की मुनासबत से तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ताकतवर तरीन मुल्क है, टेक्नोलॉजी भी उसके पास सबसे ज़्यादा है, रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, लेकिन हमसे कराची से ज़्यादा खतरनाक शिकागो और लॉस एंजलिस है इस वक्त कराची में हमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कम हुआ है इस वक्त। मैं वो नंबर्स देख रहा था, 67% कमी आई है स्ट्रीट क्राइम में पिछले 1 साल में, और ये पुलिस रेंजर्स के ही काम है। इसके साथ साथ कच्चे के इलाके में जैसे बताया गया, साहब के हम कुछ नॉन किडनैपिंग्स हैं इस वक्त, जिनकी तादाद 30 या 40 थी 1 साल पहले, नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं इस वक्त। वहाँ पे भी पिछले जो 31 शुहदा हैं, उनके एक का। सिंध पाकिस्तान की बेहतरीन और तरबियत याफ्ता पुलिस है। सूबाई वज़ीर ताज शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ये पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ ट्रेन नहीं हुई थी, इस पुलिस से दहशतगर्दी के खिलाफ हमने जंग लड़ी। तरबियत याफ्ता इंटरनेशनल दहशतगर्दों से हमेशा सिंध पुलिस ने मुकाबला किया। कौन सा ऐसा केस है जो सिंध पुलिस ने हल न किया हो? सिंध की पुलिस पाकिस्तान की बेहतरीन और सबसे ज्यादा तरबियत याफ्ता पुलिस है। ये पुलिस कभी दहशतगर्दी के लिए ट्रेन नहीं हुई थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी इस पुलिस से लड़ी है। ट्रेंड इंटरनेशनल दहशतगर्दों के साथ भी सिंध की पुलिस ने हमेशा मुकाबला किया। कौन सा ऐसा केस है जिसको आज दिन तक सिंध पुलिस डिटेक्ट नहीं कर सकी है? हमारा मुकाबला स्ट्रीट फाइटर या जेब कतरों से नहीं, बल्कि उन दहशतगर्दों से है जिन्होंने सुपर पावर को हराया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, हमें ताकतवर फौज और पुलिस चाहिए, इसलिए हम सबको मिलकर ये जंग लड़नी है। वजीर आला ने शुहदा की फैमिलीज को प्लॉट देने, जश्न आज़ादी मनाने के लिए फीकस 50,000 देने का भी ऐलान किया। आपके ज़हन में हो कि हमारी जो पुलिस या हमारी फौज जिस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है, वो कोई आम स्ट्रीट फाइटर या कंटूटे या कोई जेबकुतरे नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी हुई है। तो उनसे मुकाबला करने के लिए आपको एक सुपर पावर किस्म की फौज, ऐसी पुलिस चाहिए। हमने मिलकर ये जंग लड़नी है, हमने मिलकर दुश्मन का मुकाबला करना है। हमने तकरीबन 105 गाड़ियां बुलेट प्रूफ की हैं पुलिस की। पिछले साल हमने 2500 पुलिस वाले भर्ती किए नए। अगले हफ्ते तकरीबन 2400 सिर्फ मार्ज अजला के अंदर भर्ती करने लगे। शोधा पैकेज था, उसको भी हमने बढ़ाया। तमाम शोधा को हम प्लाट देना शुरू कर रहे हैं कि जितने भी हमारे शोधा हैं, 2330 शोधा जो बताए गए, लगभग 5000 के करीब जख्मी भी हैं। इन सब के लिए मैं 50,000 रुपए फी फैमिली ऐलान करता हूँ। उन पैसों से मेरी ये ख्वाहिश है कि अपने घर के ऊपर ये पाकिस्तान का झंडा लगाएं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वर्दी वाले अपना फर्ज निभा रहे हैं। सियासी गैर जिम्मेदारी मजीद काबिल कबूल नहीं होगी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का यौम शुहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब। कहा, ये नहीं हो सकता कि रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हों और आप सियासी तौर पर गैर जिम्मेदारी दिखाएं।
दहशत गर्दी रूज पे है KP और बलोचिस्तान। मैं बड़ा बाअदब होके कहना चाहता हूँ, वर्दी वाले तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन ये अपना सियासी फर्ज निभाएं। आपकी किसी किस्म की सियासी गैर जिम्मेदारी मजीद काबिल कबूल नहीं होगी। ये नहीं हो सकता रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हों और आप सियासी तौर पर गैर जिम्मेदारी दिखाएं, अपना फर्ज ना निभाएं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े ना हो। ये गैर जिम्मेदारी की वार्निंग आखिरी है, ये नाकाबिले कबूल है। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे सियासी फोर्सेस नहीं खड़ी होंगी, ये जंग जीती नहीं जा सकती। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो गया। ट्रंप से मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। लिखा, गैर मुल्की दबाव के बावजूद सिपह सालार ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। भारत से तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मकबूलियत में इजाफा हुआ। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। बरतानवी जरीदे दी इकॉनमिस्ट ने सिपह सालार की कायदाना सलाहियतों का एतराफ करते हुए जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। दी इकॉनमिस्ट में शाये मजमून में फील्ड मार्शल की पाक अमरीका ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा गया। लिखा कि आर्मी चीफ अमरीकी ताल्लुकात को नई जहद दे रहे हैं। 18 जून को फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। पाकिस्तान की नई सिफारती हिकमत अमली बैनुल-अक़वामी सतह पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को नई शनाख्त दे रही है। दी इकॉनमिस्ट के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। अमेरिकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। बरतानवी जरीदे के मुताबिक भारत के साथ तनाज़े के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। दी इकॉनमिस्ट ने कहा कि आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में है। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला हसन सैयद मुराद अली शाह ने मुलाकात की है। सूबे के सियासी और इंतजामी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जोर दिया यौम आज़ादी को भारत के खिलाफ जंग और बयानिए के मैदान में तारीखी कामयाबी के जश्न के तौर पर मनाया जाए। ये कामयाबी यौम आज़ादी की सबसे बड़ी खुशी है जिसे भरपूर अंदाज में उजागर किया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत को हिदायत की कि जश्न आज़ादी के सिलसिले में खुसूस इक़दाम किए जाएं। जश्न आज़ादी और मार्का हक में कामयाबी की खुशी में शानदार प्रोग्राम होंगे। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में म्यूजिकल प्रोग्राम होगा। 9 तारीख को नेशनल स्टेडियम में मुशायरा होगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का शहर के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, वज़ीर आला सियासी और मजहबी जमातों से मिल चुके हैं। जश्न आज़ादी का प्रोग्राम पीपल्स पार्टी का नहीं, सबका है। जश्न आज़ादी के हवाले से जो मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं, जो 2 बड़े इवेंट हमारे हैं। 13 अगस्त को बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हम यहाँ करने जा रहे हैं और मारूफ गुलकार यहाँ पे आएंगे। खवातीन के लिए इंक्लोजर्स अलग होगा, स्टेडियम से बाहर भी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी हम स्क्रीन्स लगाएं, लाइव जो परफॉर्मेंस होगी वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी लोग उसको देख सकें। एक्सपो का विजिट किया, वहाँ 9 अगस्त को शाम 7 बजे एक बहुत बड़ा मुशायरा किया जा रहा है। दुनिया को ये मैसेज दे सके जश्न आज़ादी और मार्का हक की खुशी में जो हम यहाँ मना रहे हैं, मिलकर मना रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने मुलाकातें की मुख्तलिफ मकातिब में फ़िक्र के लोगों के साथ, सियासी जमातों के लीडर्स के साथ, ताकि हम सबको ऑन बोर्ड लें और उनको इन खुशियों में शरीक करें और एक अच्छा मैसेज दुनिया को दे सकें। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि भारत को हमारी अफवाज ने तारीखी शिकस्त दी। जंग में चीन हमारे साथ खड़ा हुआ, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब ने भी साथ दिया। भारत से मार्का जीतने पर जश्न मना रहे हैं। तकरीब में चीन, सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद मुल्कों के सिफारतकारों ने भी शिरकत की। 10 मई 2025 में हमने भारत को शिकस्त दी थी और हम एक फातेह कौम की सूरत में सामने आए। हमारे साथ खड़े हुए चाइना की हुकूमत, सऊदी हुकूमत, तुर्किया, वो भी हमारे साथ खड़ा हुआ। ईरान हमारे लिए बयान दिए, हमारे साथ खड़ा हुआ। 7 अगस्त को राहत फतेह अली को यहाँ ऐसे बैठ के सुनेंगे। 11 अगस्त को आतिफ असलम को गवर्नर हाउस बुलाया है। 12 अगस्त को गवर्नर हाउस में अली जफर को भी हमने बुलाया है। जर्मनी जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। कराची में जर्मन कौंसल खाने ने वीजा सर्विस दोबारा शुरू कर दी है। जर्मन कौंसल खाने की जानिब से ऐलान किया गया है कि वीजा सर्विस को बहाल किया जा रहा है।
कराची में जर्मन कौंसल खाने ने वीज़ा सर्विस दोबारा शुरू होने का ऐलान कर दिया। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची सलाहुद्दीन हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी सलाहुद्दीन। जर्मन कौंसल खाने की जानिब से एक जारी किया गया है हिदायतनामा जो कल से वीज़ा सर्विस बहाल होंगी। मामूल के मुताबिक वीज़ा दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी जर्मन कौंसल खाने में। और जर्मन कौंसल खाने के मुताबिक ये भी हिदायत जारी की गई है कि जब कौंसल खाना बंद था, जिन लोगों के अपॉइंटमेंट थे उनको नए सिरे से पोर्टल के जरिए अपॉइंटमेंट हासिल करना होंगे और कल से बाज़ाब्ता तौर पर वीज़ा दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी जर्मन कौंसल खाने कराची में। जी बहुत शुक्रिया। अंजीर को जन्नत का मेवा भी कहा जाता है। अंजीर की काश्त कैसे होती है, इसे खुश करके बाजारों में कैसे ले जाया जाता है। चमन में अंजीर के बाग की सैर करा रहे हैं अख्तर गुलफाम। अंजीर की काश्त चमन कारेजात में बड़े पैमाने पर की गई है। अंजीर की मुतादिद किस्में हैं जिनमें से सभी रंग और साख्त में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। यहाँ आमतौर पर दो तरह की अंजीर पाए जाते हैं, एक पीला रंग और एक काला रंग। अब हवा के लिहाज से यहाँ की अंजीर बहुत रसदार होती है। कारेजात के बागात से अंजीर की बड़ी पैदावार हासिल की जाती है जिनको अंदरून मुल्क भेजा जाता है। दो प्रोसेस होते हैं अंजीर की, यहाँ मार्केट ले जाता है, वहाँ फरोख्त करते, यहाँ बाकायदा खुश करते, खुश करके फिर ये मार्केट ले जाते हैं। प्रोफेशनल तरीका है इसका 1 किलो तकरीबन 5000 से लेकर 8000 तक पे लोग फरोख्त करते हैं। बाग के नजदीक यहाँ प्रोसेसिंग का अमल जो अंजीर का है वो किया जाता है। सबसे पहले फ्रेश अंजीर काट कर यहाँ पे डाला जाता है, बाकायदा चांटी के बाद जो खराब है उनको अलहदा किया जाता है, जिसके बाद अंजीर को इसी चटाई पर छोड़ा जाता है। ये खुश्क हो जाता है। खुश्क होने के बाद इनको बाल्टी में डंप किया जाता है। तकरीबन 5 घंटे डंप करने के बाद इनको एक कमरे में ले जाकर इनमें रस्सी डाली जाती है। रस्सी डालने के बाद कुछ इस तरह के शक्ल में तैयार किया जाता है। तकरीबन 3 से 4 दिन इस मैदान पे पड़े रहते हैं, जिसके बाद कपड़े के नीचे डंप किया जाता है ताकि अच्छी तरह खुश्क हो जाए, जिसके बाद इनको मार्केट में ले जाकर 5000 से 8000 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाता है। कैमरा टीम के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज, निदा कारेज, चमन। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर कराची से, जिसके इलाके पहलवान गोट में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। तफसील क्या है, सलमान लोधी से जान लेते हैं। सलमान बताइए। देखिए, पहलवान कोट के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई है, जिसमें 5 अफराद जख्मी हुई थे, लेकिन अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि 2 लाशें मुंतकिल की गई हैं, 2 इस वाकये में जाँ बहक हुए हैं और 3 जख्मी हुए हैं। क्राइम सीन यूनिट को मौके पर तलब कर लिया है। पुलिस ने वक़ुआ से फुल भी इकट्ठे कर लिए। रेंजर्स और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कहती है वाकये की तहकीकात की जा रही है। कौन से 2 ग्रुप हैं, झगड़ा क्यों हुआ? देखें, गुलिस्तान शाहरा फैसल थाने की हुदूद में फायरिंग का वाकया पेश आया। पुलिस कहती है इलाके के 2 ग्रुपों में ही फायरिंग का तबादला हुआ। मेन रोड पर ये फायरिंग हुई थी, जिसमें 6 अफराद जख्मी हुए थे, लेकिन एक शख्स के बारे में बताया जा रहा है वो गोलियों से नहीं, दूसरे वाकये का जख्मी था। 2 अफराद इसमें कंफर्म पुलिस ने किया है कि वो इंतकाल कर गए हैं और 3 जख्मी हैं जिनको गोलियां लगी। अच्छा, सलमान को गिरफ्तारी हुई और एहतजाज के बाद इस वक्त रास्ते खुले हैं या सड़कें बंद हैं? सलमान लोधी हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में पहलवान गोट में झगड़े के दौरान गोलियां चली हैं। फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े के बाद जो अहले इलाका हैं उनकी जानिब से इस सड़क को बंद कर दिया गया है। आग लगाकर इस सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुअत्तल किया गया है। पुलिस हुक्काम भी इस मौके पर देखे जा सकते हैं। अलबत्ता अभी तक कोई गिरफ्तारी हो सकी है या नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त है। 2 लाशों को अस्पताल लाया गया है, जबकि इस वाक़े में 3 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। कोटली में 6 साल की तस्मिया का कत्ल, पूरा शहर सड़कों पर निकल आया। हजारों अफराद ने एहतजाज में कातिल को फांसी दो के नारे लगाए। बैरून मुल्क मुक़ीम बच्ची के वालिद ने तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। तस्मिया के वालिद ने बताया पुलिस ने मुलजिम की कोई तफसील नहीं दी, बस कह दिया कातिल ने इकरार जुर्म कर लिया। वो इस बात को नहीं मानते जिसने बेटी की जान ली, उस दरिंदे को उनके और कौम के सामने लाए। SSP कोटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुलजिम वारदात करके फैसलाबाद भाग गया था, टेक्निकल तरीके से ट्रेस करके गिरफ्तार किया है। मरकजी मुलजिम मुमताज ने दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म भी कर लिया है। केस में एक और शख्स फैसल को भी गिरफ्तार किया गया है। 1 हफ्ते पहले बच्ची की लाश खेत से मिली थी। उस मासूम बच्ची के हक में और कातिल, बड़ी प्यारी बेटी थी मेरी, इन दरिंदों ने उसको मार दिया। एक तो प्रदेश में हूँ,
ایک اپنی پولیس کا جو رویہ میں نے آج دیکھا ہے بڑا دکھ ہو رہا ہے. مجرم کو سامنے لاؤ, ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے. آپ نے بول دیا کہ مجرم نے اقرار کر دیا, میں نہیں ایسی بات مانتا. میں بہت جلد پاکستان آؤں گا انشاءاللہ, 1-2 دن میں آ جاؤں گا, پھر میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ قانون کیسے چلاتے ہیں. ورثاء نے اپنے طور پہ اس کو تلاش کیا لیکن بچی برآمد نہ ہو سکی. SHO صاحب DSP صاحب موقع پہ گئے, وہاں پہ تلاش باری کی. مئی کی بھول اور دھول اب بیٹھ جائے تو بہتر ہے. آپ نے ہمارے ارکان کو نااہل کیا, اب تو حساب برابر ہو گیا. کب تک ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوں گے؟ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا بنیر میں خطاب, کہا یہ سزائیں بند کریں. PTI کو اسپیس نہ دیا تو جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. 5 اگست کے بعد بھی تحریک جاری رہے گی. خان صاحب رہا نہیں ہوتے, تحریک نے رکنا نہیں. 5 تاریخ کے بعد آئندہ کا عمل دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کو 3 کروڑ ووٹروں کی سپورٹ حاصل ہے. ہمارے ساتھ ظلم زیادتیاں بند کی جائے. ہمارے 7 پارلیمنٹرین کنوکٹ ہوئے, ہمارے 2 سینیٹر کنوکٹ ہوئے, 4 MPs کنوکٹ ہوئے. 39 کنوکشن کے رسک پہ. اگر یہ طریقہ کار ایسے چلا تو ملک کے جڑیں ہل جائے گی. یہ سزائیں بند ہو. 9 مئی کی بھول, 9 مئی کی دھول ابھی بیٹھ جائے تو بہتر ہے. ہماری ڈسکوالیفیکیشنیں ہوئی, اب تو حساب برابر ہو گیا. کب تک ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتے رہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کو اگر سپیس نہیں ملے گی تو جمہوریت میں خطرے میں پڑ جائے گی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ 9 مئی واقعے کی معافی نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہونی چاہیے. جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے فساد کی کال دے دی جاتی ہے. کل $1 کروڑ 80 لاکھ سے اشتہار چھپا, پیسے کہاں سے آئے؟ یہ پہلے بھی امریکہ سے آزادی مانگ رہے تھے, اب بیٹے مانگ رہے ہیں. 5 اگست دوبارہ سے فتنہ فساد کی کال دی گئی ہے. ان کے اپنے اس لیڈر نے گوریلا جنگ کا نام دیا ہے اس کو. یہ ایک فاشسٹ گروہ ہے. جب پاکستان ٹریک پر چڑھتا ہے فساد کی کال دیتے ہیں. $1 کروڑ 80 لاکھ سے یہ اشتہار چھپا ہے کل. اس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ یہودی لابی نے ری لانچ کیا ہے نا اپنا پروڈکٹ, عمران خان ایڈوانسڈ US انٹرسٹ. پہلے بھی یہ امریکہ سے آزادی مانگ رہا تھا اور آج بھی ان کے بیٹے انہیں کے در کے اوپر جا کر آزادی مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. لکھ لیں, یا ٹرمپ تیرا ہی آسرا. 9 مئی کی معافی نہیں ہو سکتی, نہ ہونی چاہیے. پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو تیسرے T20 میں 13 رن سے شکست دے دی. 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کی. صاحبزادہ فرحان میچ اور محمد نواز سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. اسٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی.